Samvad. Samvad is a celebration of voices, ideas, and dialogue. Dialogue makes us think. It expands the boundaries of all of it that serve as a barrier in our growth. A very good afternoon to all of you. I, Dr. Neerja Vasavda, am privileged to welcome you all on this beautiful day, a perfect one to think about your career prospects. As a part of our mission of equipping our students for the corporate world, we, the team of Faculty of Business Administration, not only focus on academics, but also try to bridge the gap between academics and the industry. In this endeavor, we invite guest speakers from industry and academics to interact with our students on a variety of topics so that our budding managers and entrepreneurs learn true lessons of life. So without taking much of your time, I'd like to introduce our guest for the day, Mr. Sahil Shah. Mr. Sahil Shah identifies himself as a serial entrepreneur and is an expert digital marketer who loves to discuss ideas over a cup of chai. He started his journey with Hungryto, an ever-growing online community of 120K plus foodies, and is recognized among the top 20 startups of Gujarat. A TEDx speaker, Mr. Shah has been a recipient of Excellence in Public Administration Award, and he successfully runs a digital marketing company filled with young net savvies fostering creativity to execute unforgettable brand experiences. I invite Dr. Peenal Barot to welcome Mr. Shah with a memento. Thank you, ma'am. And without further ado, I invite Mr. Shah to take the stage. No, વાંધો નહીં. શું થયું? Okay. Am I audible? हेलो, आवाज़ आ रही? तो थोड़ा जोर से बोलो. लंच बाकी है? ठीक है. सो हाय, आई एम साहिल. शक्ल से ऐसा लगता है कि मैं आपके बीच में बैठूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगा. आई माइट ऑल्सो लुक लाइक अ फर्स्ट ईयर गाय, बट आई हैव अ लॉट ऑफ वाइट हेयर नाउ एंड आई एम 31 ईयर्स ओल्ड, सो दैट यू गेट अ कॉन्टेक्स्ट कि भाई जो भी आदमी बोल रहा है वो थोड़े वर्षों का एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा है. ठीक है. अब ऐसे मरे मरे देखोगे मेरे को तो नहीं मज़ा आएगा. मेरे को 1 घंटा बोलने के लिए बोला हुआ है. ठीक है. और तुम सब ऐसे देखते रहोगे ना, मेरे को एकदम वैसा हो जाएगा कि यार आ लोगों को मज़ा नहीं आई रही. ठीक है. सो जस्ट चिल आउट. अपन मस्ती करेंगे अगले 1 घंटा. नहीं मज़ा आया ना तो आधे घंटे में बंद कर देंगे. बोलो डन. हाँ, सामने बोलो हाँ. हाँ बस हाँ, बोलते रहना क्योंकि मेरे को आवाज़ आता रहेगा तो ही मैं बोलता रहूँगा, वरना फिर मैं उतर जाता हूँ. ठीक है. तो जैसे ही लगे 5 मिनट तक मेरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो मैं उतर जाऊँगा. डन. हाँ, स्टैंड अप कॉमेडी वाला ही अपन सेगमेंट रखेंगे, है ना. ठीक है. सो हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम गुजरात? ओके, ऑलमोस्ट एवरीवन. ठीक है. तो फिर अपन नॉर्थ गुजरात साउथ गुजरात वाला करते हैं क्योंकि बंदर बाट करने से ही आदमी का समझ आता है कि कहाँ से है. ठीक है. हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम अहमदाबाद लोकल? ओके, नाइस क्राउड. सो अराउंड 70% आर फ्रॉम अहमदाबाद. सूरत, साउथ गुजरात, ग्रेट. ओके, मस्त. नॉर्थ महसाना साइड कोई आ रहा है? ओ, पाटन महसाना, मस्त. ओके, ग्रेट. सो वी विल स्टार्ट विद AI, and that is the topic for today. So whatever we are going to discuss might change tomorrow also, because the topic is like that. And कहावत सुनिए, change is the only constant, है ना. So in this world it is a regular thing. Every day things are evolving, every day things are changing. The speed of change has increased a lot. Most of you have done commerce as a background, या कोई साइंस से भी है? Everybody is from commerce. One person is from science, 2-3 people are from science. Okay, great. So everybody is from commerce. If you see, there has been a lot of industrial revolution. We are in part of the 4th industrial revolution technically. ठीक है. फर्स्ट आई थी तो मशीनरी आए और वो सब चीज़ें हुई, फिर सेकंड आई, फिर थर्ड आई और फिर फोर्थ आई. यू कैन रीड अबाउट इट इन डिटेल एंड अंडरस्टैंड थिंग्स.
The current set of changes that you are going to see in the trend are that जहाँ किसी को भी पता नहीं कि future क्या होगा, and that is what we are going to talk about. How things have evolved, what are the things which are happening, and how you in your next 3 years of bachelor's can make sure that after you come out, you might be able to get a job, a very good job. Second, you might be able to start your own startup, or in the meantime, if you have some ideas, you can execute them. ठीक है, सब लोग Instagram यूज़ करते हैं, each one of you, ठीक है. WhatsApp सब लोग यूज़ करते हैं, ठीक है. किसी को हिंदी समझ नहीं आता ऐसा कोई है? कौन? अरे यार, ठीक है. ओके, एवरीबडी અંડરસ્ટેન્ડ હિન્દી, રાઈટ? એવરીબડી અંડરસ્ટેન્ડ ગુજરાતી? ગુજરાતી બધાને આવડે છે? બહુ જ સરસ. મારો પ્રોબ્લેમ એ છે કે મને છે ને ત્રણેય લેંગ્વેજમાંથી એકે આખી નથી આવડતી, બરાબર? 1200 વર્ડની વોકેબ્યુલરી છે, એટલે ગમે ત્યારે મારી લેંગ્વેજો શિફ્ટ થઈ જશે. ओके, सो बेयर विद मी. वेन एवर यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, इधर स्कीप इट, क्योंकि बहुत सारे लोगों, ठीक है, तो ऐसे सवाल उठा के नहीं समझ आए ऐसा अभी मत करना, लास्ट में अपन क्वेश्चन आंसर रखेंगे, ठीक है? तो लिख के रखना. ग्रेट. सो अबाउट मी, आई कम फ्रॉम अहमदाबाद. आई हैव बीन born and brought up here. वैसे टेक्निकली फर्स्ट 7 years of my life were in Kalol, then I shifted to Ahmedabad. I have done my education from DICT, which is an engineering college. अगर ACPC से रैंकिंग में देखो तो अभी नंबर 1 पे क्लोज होता है, ठीक है? हमारे टाइम पे वो सिर्फ AIEEE और JEE से ही एडमिशन मिलता था वहाँ. सो आई हैव बीन इंजीनियर बाय प्रोफेशन. जस्ट टू लेट यू नो, आई एम अ 5.5 पॉइंटर इंजीनियर. सो 10 में से 5.5 है, 55%, ठीक है? सो नॉट अ वेरी गुड इंजीनियर, बट आई डिड माई होल इंजीनियरिंग आफ्टर आई स्टडीड इट, ठीक है? आई लव टी एंड कॉफ़ी अ लॉट. सो वेन एवर यू वॉन्ट टू डिस्कस समथिंग, मेरे को चाय की लालच दो, मैं कहीं भी चला जाता हूँ, ठीक है? एसिडिटी बहुत हो जाता है उसकी वजह से, लेकिन हाँ, ठीक चलता है. आई हैव डन अ लॉट ऑफ थिएटर इन माई लाइफ, इन माई कॉलेज लाइफ. और उसके बाद जीवन ही अपने आप में करवा रहा है रोज़, ठीक है? रोज़ उठो, रोज़ नाटक करो और फिर आगे बढ़ो. ओके, लास्ट पार्ट इज आई हैव बीन डूइंग डिजिटल मार्केटिंग फॉर लास्ट 10 years नाउ, एंड आई हैव सीन द इवोल्यूशन ऑफ ऑल द प्लेटफॉर्म्स. फेसबुक पे जब स्टेटस अपडेट होते थे तब से लेकर, एंड इन द करंट सेट ऑफ थिंग्स व्हेन रील इज़ द ओनली फॉर्मेट इन विच पीपल आर visually seeing things, understanding things, and you can change narratives. There have been 2 companies which I have been associated with. Both are founded by me. How many of you know about Hungryto? किसी ने नाम सुना है? काफ़ी ज़्यादा. कितने लोगों ने अटेंड करा हुआ है फेस्टिवल कोई? ओके, ऊपर वाले सीनियर्स ने सबने करा हुआ है, ऐसा है? ठीक है, इस साल कुछ करेंगे तो आप लोग भी आ जाना. यूजुअली आ ही जाते हैं सब लोग. सो वी यूजुअली डू अ 10-day long festival in Ahmedabad. We have done quite a number of them. We recently in Ahmedabad did just a 1-day thing which was 31st. और उसके अलावा हमने ये साल में कुछ ज़्यादा नहीं करा हुआ है. ये साल हम लोग और भी चीज़ें करेंगे. Hungryto is a food discovery platform technically, and we have been in existence for last 10 years now. The same goes for NetService. It's our services arm. Currently we are consulting companies which are Series A, Series B funded. किसको समझ आता है व्हाट इज सीरीज ए, सीरीज बी फंडेड? कुछ हैं 4-5 विद्यार्थी जिनको समझ आ रहा है, ठीक है? सो जिन लोगों को नहीं समझ आ रहा है, आप लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, तो जो कंपनीज 40 करोड़ 50 करोड़ का फंड उठाती है उन लोगों को हम कंसल्ट करते हैं टेक्निकली, कि पैसा कहाँ खर्चा जाए, कैसे खर्चा जाए, जिससे आउटपुट आएगा. सो वी आर कंसल्टेंट टू देम कि वेयर दे शुड स्पेंड मनी, हाउ दे शुड स्पेंड मनी, एंड व्हाट काइंड ऑफ आउटपुट आर दे गोइंग टू हैव. So usually the companies that we consult start from 300 crore to 400 crore, and then when we leave their consulting, or because their market share has increased, most of the companies reach around 1000 crore valuation. So for last 2.5 years we have been continuously doing this part of our business. Okay, clear? Okay, great. ठीक है, ये थोड़ा सा जो पहले भी कहा गया था इसका प्रूफ है, वीडियो भी है, ठीक है? अच्छा वीडियो नहीं है क्योंकि आवाज़ अच्छा नहीं था, ठीक है? आवाज़ मेरा आज भी अच्छा नहीं है, इसके अंदर सुना ही अच्छा नहीं देते, ठीक? ग्रेट. सो व्हाट इज एआई? कितने लोगों को पता है? 1 2 3 4. कुछ नहीं है, सब लोग हाथ ऊपर करो. कहीं वो ना हाथ तो ऊपर कर ही देना. तुमको अभी वो वाई करेंगे तो उसमें थोड़ी प्रिपेयर करके जाने वाले हो, हैं? ऐसे ही जाके बोलते हो कि हाँ हानु हाँ हो. रोबोटिक्स क्या है? तो रोबोट का कुछ होगा मैडम रोबोटिक्स में. ठीक है? सो यू ऑल आर गोइंग टू डू दैट. सो दैट इज लाइफ. नाउ द प्रॉब्लम इज यू कैन डू इट वेरी इजीली. सब लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हो? खोलो, चैट मत करने लगना. व्हाट्सएप खोलने के लिए क्या हुआ है, ठीक है? व्हाट्सएप में अगर आप जब व्हाट्सएप चालू करोगे, ऊपर राइट हैंड साइड आपको ब्लू कलर का एक आइकन आ रहा होगा. कितने लोगों के व्हाट्सएप में है ना? लामा करके है,
लामा कहते हैं, लेमा कहते हैं, अगेन माई इंग्लिश इज़ वेरी बैड, बट इट्स अ चैट, मेटा एआई करके नाम है, खुला सबका, ठीक है. सो दिस इज वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ एआई, ठीक है. दिस इज कॉल्ड जनरेटिव एआई. अब व्हाट इज देयर, यू आस्क, अंदर उसको कुछ पूछो, हाउ इज द वेदर टुडे, सवाल करो, सवाल करो, हाउ इज द वेदर टुडे, कुछ जवाब दिया उसने, किसी का आया कुछ जवाब? ग्रेट. व्हाट्सएप अपडेटेड नहीं है यार, ठीक है. जीवन में भी ये ध्यान रखना, अगर अपडेटेड नहीं रहोगे तो अकेले ही रह जाओगे. आईफोन में भी नहीं है दीदी, मेरे में तो आ रहा है. ठीक है. सो जिसके पास नहीं है वो बगल वाले में देखे, ठीक है. पेपर में ऐसे ही कॉपी करनी होती है, ठीक है. जो नहीं आता है वो बगल वाले में देखना होता है, और पकड़े जाओ तो वो चोरी है, नहीं पकड़े जाओ तो टैलेंट है, ठीक है. सो नॉट प्रमोटिंग टू डू एनी काइंड ऑफ चोरी और समथिंग, बट जस्ट लेटिंग यू नो. सो दिस फॉर्मेट विच इज कॉल्ड, ये एआई है, मेटा का एआई है, ठीक है. जस्ट आस्क अ क्वेश्चन, व्हाट इज जीएलएस यूनिवर्सिटी, क्वेश्चन पूछो अंदर, व्हाट इज जीएलएस यूनिवर्सिटी. I'll just try if that thing is working here or not. ठीक है, ग्रेट. मैंने करा हुआ है बहुत सारा. तो व्हाट इज, ठीक है. एवरीबडी इज एबल टू सी दिस. I'll just connect my internet. So close my chat apps. Let me just ask it again. My net was not connected. कुछ ना कुछ तो आंसर आया है. इज इट विजिबल टू एवरीवन? ठीक है. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड अ गूगल सर्च? कोई बता पाएगा? सॉरी, नथिंग. ओके, यस. Okay, so let me make it simple. He said the right thing. When you ask Google what is 4 plus 4, Google will give you answer of 8. Okay, but yeah, when you are going to ask Google what is GLS University, or then Google might not give you the answer. It might land up on a page where it is written what is GLS University. Okay, so that is a major difference. Now when you are asking AI और द चैटबॉट्स विच आर क्रिएटेड राइट नाउ, सो आप चैट जीपीटी को पूछोगे या फिर जैसे मेटा का लामा है उसको पूछोगे, what will happen is they will give you contextual information about whatever you are asking. So suppose I write what is Hungrito, what is Hungrito. If I write it here, it will give me a contextual answer in 300 words कि भाई what is Hungrito. But if I do a Google search, it will bring me to some of the pages where what is Hungrito is written. Okay. So that is a major difference in these both things. So ये दे रहा है कि भाई ये चीज़ें होती है, फूड डिस्कवरी प्लेटफॉर्म है, ये टाइम से ये टाइम तक चालू रहता है, और अलग अलग इन्फॉर्मेशन. ओके, सो नाउ टेक्निकल डेफिनेशन इज मशीन्स दैट आर प्रोग्राम टू लर्न एंड थिंक ऑन देयर ओन. ओके, द टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ एआई इज मशीन्स दैट आर प्रोग्राम टू लर्न एंड थिंक ऑन देयर ओन. हाउ डिड इट स्टार्ट? इट स्टार्टेड with 3 set of tasks which are there. और ये evolution का है. So evolution कैसे है? First there were narrow tasks which were there, small similar tasks. वो task कैसे हो सकते हैं कि भाई when we see we have to keep one thing from one place to another place. It's a smaller task. कि क्या task दिया है? ये bottle है तो bottle को उठा के नीचे रखना है, या एक ड्रॉवर से निकाल के bottle को दूसरे ड्रॉवर में रखना है. So these are smaller tasks which are programmed. So these are small narrow tasks कि भाई point A से point B का कुछ task है. Second task is
where they will have to think like a human, which we are in current generation. So what is that? When you are asking questions, they are responding back. So जो हमने देखा अभी मेटा AI में, so we are asking some questions and then they are going to respond back. The third thing which is going to come is where the AI will become super intelligent. In a way कि भाई डॉक्टर से ज़्यादा AI को ज्ञान होगा, जो आज की तारीख में बहुत सारी जगह हो रहा है. If you go for diagnose and you meet a MBBS doctor, MD physician की बात नहीं कर रहा हूँ, MBBS doctor, there are chances where AI will be able to give you a better context about what is happening with you than that doctor. The only problem is the communication barrier. आज डॉक्टर को आप पूछते हो तो डॉक्टर आपकी भाषा में जवाब देता है, आपको समझाता है, હ્યુમન કોન્ટેક્સમાં ચીજે બતાતા કે નહીં મેડમ ચિંતા ના કરો, આ વસ્તુ આવી રીતે થાય, 2 દિવસમાં બધું મટી જશે. હ્યુમન ये चीज़ करता है. AI क्या करेगा? दीज आर द पॉइंटर्स, दीज आर द थिंग्स, ये दवाई लो घर जाओ, बात खत्म. ठीक है, वो आपको सहानुभूति है वो सब चीज़ें नहीं देगा. इन फ्यूचर AI विल गेट इन टू दोज रोल्स. ठीक है, तेरी बातों में उलझा जिया देखा था मूवी? कितने लोगों ने देखा है? हाँ, कृति दीदी AI थे, रोबोट थे, है ना? सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग राइट नाउ वेयर यू विल सी मूवीज एंड दोस. काल के कितने लोग देखने जाने वाले? काल की आया है? किसी ने बुक करवाया? नहीं, अभी नहीं. प्रभास માટે એટલું બધું નથી, दीपिका માટે છોકરાઓ यार. ठीक है, सो कॉन्टेक्स्ट. अब जो मैंने पूछा, AI क्या करता है? AI से आपको पूछेगा और जवाब देगा कि भाई कितने लोग जाने वाले हैं, तो कि भाई हाँ इतने लोग जाने वाले हैं, उसने आउटपुट दे दिया. द सेकेंड पार्ट ऑफ थिंग इज अ ह्यूमनाइज थिंग कि भाई प्रभास के लिए देखने जाने वाले हो, दीपिका के लिए देखने जाने वाले हो, ये चीज़ है. और इन फ्यूचर वेयर द मॉडल्स आर बीइंग डेवलप्ड, these are being developed where the AI will have some kind of human context. ठीक है, and that is where कितने लोग एप्पल की चीज़ें फॉलो करते हैं? यानी डेमो डे होता है, वो सब चीज़ होता है, वो देखते हैं. ठीक है, थोड़े बहुत लोग. लास्ट वाला देखना, वेयर दे हैव इंक्लूडेड, एप्पल का खुद का एक सिस्टम है वेयर दे आर नाउ टेलिंग पब्लिकली कि हाँ हम भी AI कर रहे हैं. ओपन AI के साथ उनका टाइप है और देन दे विल बी यूजिंग आवर डेटा इन दैट. ठीक है, सो वी विल सी व्हाट इज द इवोल्यूशन ऑफ AI. सबसे पहले हुआ था एलन टर्निंग का एक चीज़ है, ये सिर्फ बुकिश है, यानी कुछ ऐसा नहीं कि तुम लोग ये याद रखोगे तो कुछ फ़ायदा होगा और याद नहीं रखोगे तो कुछ नुकसान भी नहीं है. ठीक है, ये बस ऐसा है कि इट इज़ समवेयर इन द पेजेस. पानीपत की 1957 या 1857 की जो लड़ाई है, जो आज के दिन में आप लोग को कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं देती, लेकिन SS में हमने को पढ़ाया गया था. ठीक है, तो अपन पढ़ते थे, याद रखते थे, जिसको याद है उसको याद है, जिसको नहीं है उसको फ़ायदा नहीं वैसा. तो व्हेन यू सी दिस वाज द फर्स्ट टेस्ट विच वाज देयर वेयर दे यूज्ड टू जज. They used to give the same kind of exam to a human and then give the same kind of exam to a computer and then see who is able to solve how and then judge कि भाई ये कंप्यूटर ने करा है या ये ह्यूमन ने करा है. आप कभी कभी देखते हो कि आई एम अ ह्यूमन, आई एम नॉट अ रोबोट करके चीज़ होती है, वहाँ पे आपको टिक मार्क करना होता है. ठीक है, कई बार आप देखोगे कि खाली टिक मार्क थी જ વસ્તુ થઈ ગઈ, આને તો કંઈ એક્સરસાઇઝ જ ના આપી મને કરવા માટે. क्या लग रहा है वो क्यों कर रहे हैं? हाँ सर बताओ, वो क्यों करते हैं? सिर्फ टिक मार्क ही करवाते हैं, वो क्या जज कर रहे होंगे? सर अगर ह्यूमन होता है तो वो डायरेक्ट टिक बॉक्स पे टिक कर देता है, लेकिन अगर कंप्यूटर लैंग्वेज होती है तो वो एरो को अलग अलग डायरेक्शन से होते हुए टिक बॉक्स पे लेके जाती है, उससे रीड हो जाता है कि रोबोट है कि ह्यूमन है. ट्रू. इनको ये ज्ञान कहाँ से मिला पूछो? रील देखा था यूट्यूब पे. हाँ ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर की क्लास में तो ये पढ़ा ही नहीं गया था कभी भी. तुम लोग भी 12वीं तक सब लोग पढ़े हुए हो, क्यों एक ही बंदे के पास ये पता था या 2 बंदे यहाँ? दिस इज वॉट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर. द नॉलेज पैरिटी इज गोइंग टू इंक्रीज ड्रास्टिकली. On the other end, whatever questions that are pushed towards you, you have all the answers on your fingertips. That is also there. आज आपको कोई फील्ड का नॉलेज नहीं है तो भी आपके पास उसके जवाब है, और कोई फील्ड का आपको वैसा है कि भाई यार ये क्या काम का है, फिर भी उसका भी बहुत सारा नॉलेज. सब लोग रील्स देखते हैं, भतेरी 5 जात की चीज़ें आती उसमें. आ खाओ तो कोलेस्ट्रॉल वधी जाए, आ खाओ तो BP वधी जाए, आ खाओ तो એટલે કે ખાવાનું કે નહીં ખાવાનું. ठीक है, ज़्यादा शुगर नहीं होना चाहिए, शुगर इज़ बैड. फिर कोई बोलेगा कि भाई कम शुगर है तो बॉडी में एनर्जी नहीं रहता है, ये होता है वो होता है, ग्लूकोज पियो, ये करो.
So whatever information that you are consuming right now in your current context, that is over information, number one. ठीक है, इसीलिए आप लोग की चिंता का मात्रा थोड़ा ज़्यादा है हमारी जनरेशन से. हमारे ऊपर वाली जनरेशन एकदम चिल में रहती थी, लेकिन उनके प्रॉब्लम अलग थे. वो रोटी कपड़ा मकान के प्रॉब्लम में सॉल्व करने में लगे हुए थे. आप लोग के पास सब कुछ सॉल्व है, तो आपको ये कि नहीं आजा टी शर्ट नहीं आजा आवाड़ी पहन जैसू. हमारे टाइम पे ऐसा था कि 3 ही टी शर्ट है ब्लैक कलर की, जो भी पहनो सब सेम ही है. ठीक है, सो that is there. You all have a lot of information, you have a lot of variety of things that you can do, and that is how your problems will also be. Variety की प्रॉब्लम होगी. हमारे पास प्रॉब्लम ऐसा होता था कि 4 चीज़ है, अब जो लेनी हो ले लो. तुम्हारे पास ये है कि 400 चीज़ है, अब क्या लूँ वो प्रॉब्लम है. ठीक है, सो थोड़ी अगेन इन्फॉर्मेशन विच इज़ जार्गन. AI अभी चालू नहीं हुआ है, AI अभी पैदा भी नहीं हुआ है. ठीक है, थिंग्स आर वर्किंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. AI is just a packaging which is shown to you. Things have been working on the front of machine learning for a long period of time. Everything that you see in a computer is a part of machine learning. ठीक है, कितने लोगों ने पेंट यूज़ करा हुआ है? MS पेंट कभी ज़माने में कभी किया हुआ है. ठीक है, कभी ना कभी स्कूल में सिखाया था MS पेंट और वो सब चीज़ें. ठीक है, आज कितने लोग MS पेंट यूज़ करते हैं? कोई भी नहीं. बाबू क्या चल रहा है जीवन में जो MS पेंट यूज़ करना पड़ रहा है? टाइम पास, नशे हैं अपने सस्ते सस्ते. क्या करा आज, क्या करा आज, तो MS पेंट यूज करा है हमने. ठीक है, सबकी अपनी अपनी ट्रिप होती है भाई, है ना. सो व्हेन यू सी यू यूज MS पेंट, ठीक है, आपने एक चीज करी यूज. राइट नाउ अ लॉट ऑफ यू वुड हैव नोन अबाउट अ टूल कॉल्ड कैनवा. आपको अगर कुछ काम होगा तो आप लोग क्या करोगे? कैनवा खोलोगे. MS पेंट नहीं खोलने वाले. MS पेंट भी वही कॉन्टेक्स्ट में था कि भाई वो भी एक मशीन लर्निंग का टूल है, कोड करके टूल बना है, वो चीज़ है. बट थिंग्स हैव इवॉल्व्ड इन लास्ट 5 years. कैनवा हैज़ इवॉल्व्ड अ लॉट, जहाँ पे आपको MS पेंट या फिर उससे भी बहुत अच्छा टूल जो होता था फोटोशॉप, ठीक है, उसके बदले आज कैनवा में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं. पहले अगर आपको इमेज के पीछे से बैकग्राउंड निकालना हो तो आप फोटोशॉप खोलते थे, उसमें मैजिक टूल यूज़ करते थे. पहले हम लोग बैकग्राउंड चेंज इसको अलग करते थे कि ये बैकग्राउंड अलग है, फिर पीछे का लेयर हटाओ. यानी पूरा 10-15 मिनट का मिनिमम प्रोसेस था, जहाँ पे अगर कोई एफिशिएंट है तो वो कर पाएगा 15 मिनट में. बाकी तो 1 घंटा 2 घंटा, जैसी इमेज वैसा काम. आज remove.bg करके टूल है, वहाँ पे इमेज डालो, आउटपुट में आ गया तुम्हारा 100,000 क्रॉस 1000 का इमेज और ख़त्म. A lot of things are changing. It is not just because of AI. Copy.ai करके एक टूल था जो 2017 से चल रहा है. AI अभी तुमको वोकेबलरी में आई है चीज़, बाकी चीज़ें बहुत पहले से चल रही है. इट इज़ जस्ट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट. इज इट क्लियर? तुमको कुछ आज दिखा है उसका मतलब ये नहीं कि उसका डिस्कवरी आज हुआ है, सिर्फ वो ध्यान में रखना. दूसरा, तुमको कुछ आज आइडिया आया है उसका मतलब ये नहीं कि किसी को वो आइडिया नहीं आया है. ठीक है, ये भी ध्यान रखना. अरे इट इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड आइडिया, किसी के पास ये आइडिया नहीं है. 15 लोगों ने आइडिया या तो दिमाग से ही निकाल दिया होगा कि ये पॉसिबल नहीं है, या तो फिर ऐसा हो सकता है कि किसी ना किसी ने इंप्लीमेंट करा ही होगा. ओके, कूल. लास्ट पार्ट जो लिखा हुआ है, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एंड न्यूट्रल नेटवर्क. न्यूट्रल है, हाँ, न्यूरल नेटवर्क, न्यूट्रल नहीं है. न्यूट्रल और न्यूरल में क्या फ़र्क होता है? गाड़ी न्यूट्रल में आवे, न्यूरल में ना आवे. सिंपल, ऐसे जवाब देना सीखो. ठीक है. बेनिफिट्स ऑफ एआई बहुत सारे हैं, लेकिन अभी कॉन्टेक्स्ट के लिए 4 पार्ट में देखेंगे. देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स विच एआई हैज़, और बुराई भी है जो भी अपन डिस्कस करेंगे. बट व्हाट आर द मेजर बेनिफिट्स? द फर्स्ट बेनिफिट इज इन द हेल्थ केयर सेक्टर, वेर इफ यू सी एप्पल विजन प्रो, कितने लोगों को पता है क्या होता है? एवरीबडी नोज. वो ऐसा बड़ा बड़ा आंखों में पहना के कुछ है ना. ठीक है, पहले कहते थे कि भाई आँख के पास स्क्रीन मत लाओ, टीवी से दूर बैठो. अभी इधर ला के टीवी रख दिया उन्होंने. ठीक है, फिर कहते हैं नंबर आएंगे या नहीं आएंगे. हाँ, सो व्हेन यू सी इन हेल्थ केयर सेक्शन, देयर हैव बीन few hospitals in Chennai, few of them in Kerala, where these guys are using Apple Vision Pro, and by the use of it they have created the whole virtual environment जहाँ पे वो लोग ऑपरेट कर रहे हैं. Doctors are here, they are operating in air. Machines are there in US, UK and other places where they are operating the patient there. ठीक है, so this is just because of AI कि भाई AI can replicate things, और बहुत सारी मशीनरीज और वो सब चीज़ों में इवोल्यूशन आया है जिसके कारण ये सब चीज़ें हो रही हैं. ठीक है, इट इज़ मोर बिकॉज ऑफ पावर ऑफ कंप्यूटिंग. सेकंड, बिकॉज द बैंडविड्थ हैज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड.
ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल यही चीज़ के साथ। सबसे पहले फेसबुक में आप लोग शायद 2004 के बाद आए हो सब लोग दुनिया में, ऑलमोस्ट 4 के बाद की बैच है ना पूरी, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। सो जब तुम पैदा हुए थे तब फेसबुक भी पैदा हुआ था, ठीक है। सो फेसबुक जब आया था 2004 में, उसमें सिर्फ स्टेटस अपडेट होता था, ठीक है, जहाँ पे स्टेटस अपना व्हाट्सएप स्टेटस अपडेट में इमेज जाता है, वो वाला नहीं, सिर्फ टेक्स्ट लिख सकते थे। देन दे गॉट फोटोग्राफ्स कि भाई आप लोग फोटोग्राफ्स अपलोड कर सकते हो। देन दे गॉट एल्बम्स कि भाई आप एल्बम डाल सकते हो। फिर आया आप एक वीडियो डाल सकते हो 1 मिनट तक। फिर आया कि आप पूरी वीडियो डाल सकते हो। फिर 2016 तक आते आते उन्होंने कहा लाइव वीडियो करो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कुछ और लाए, फिर कुछ और लाए। ये जो इवोल्यूशन है जो फीचर्स का है ह्यूमन कॉन्टेक्स्ट में, कि भाई सबको ये पहले ही दिन पे क्यों लाइव वीडियो नहीं दे दिया? एनीबडी कैन गेस पहले दिन पे लाइव वीडियो या वीडियो अपलोड करने का मौका क्यों नहीं दिया 2004 में? 2010 में जाके क्यों एल्बम का आया? यस सर, ओके, दैट इज वन पार्ट। एनी अदर पर्सन? यस, टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुआ होगा, ओके। एनी अदर पर्सन? ठीक है, वेरी ट्रू, दैट इज अ मेजर रीजन। नेटवर्क जब 2G चल रहा होता है तो 2G के हिसाब से ही प्रोडक्ट में फीचर्स आते हैं। जब 3G चलेगा तो 3G के हिसाब से ही प्रोडक्ट में फीचर्स आएंगे। जब 4G आएगा तो 4G में ही फीचर्स आएंगे, क्योंकि बिफोर टाइम जो जो चीज़ का इवोल्यूशन होता है वो मार्केट में अडॉप्ट वो लेवल पे नहीं हो पाती। यानी आप कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें देखोगे, अब जब आप देखोगे जियो 2016 में जब फ्री इंटरनेट करा 4G वाला, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें चली। वीडियोस तब भी थे, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट तब भी बनता था, ठीक है, लेकिन टिकटॉक का इवोल्यूशन ज़्यादा इसीलिए हुआ क्योंकि सबके पास अब इंटरनेट आ गया था। और देन आफ्टर टिकटॉक, बिकॉज इट वॉज बैंड, इंस्टाग्राम टुक ओवर इट, ठीक है। It is just because the bandwidth has increased over a period of time, and that is why you are seeing a lot of features happening. ठीक है. So healthcare changes are coming. Second is transportation. If you see driverless cars and those kind of things are coming up. What is that? A machine has been given a context of okay, now you can drive the car on your own. You will know कि भाई इतने बाद सिग्नल पे ये आने वाला है तो आज ब्रेक मारनी है या नहीं मारनी, यहाँ ये लगाना है नहीं लगाना। अभी इंडिया में भी अपनी बहुत सारी कार्स में वो फीचर आ गया कि भाई सेल्फ पार्किंग हो जाती है, ठीक है, थोड़ी महंगी वाली गाड़ियों में, लेकिन वो अभी है। टेस्ला एज अ कार कैन ड्राइव ऑन इट्स ओन। दैट इज अगेन अ ह्यूमनाइज्ड वर्जन ऑफ थिंग्स। What do you think? What is the number one effect if all the people are going to have driverless car? आपके हिसाब से कौन सी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आ सकता है? बोलो। आज इंडिया में सब जगह ड्राइवरलेस कार होगी तो कौन सी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा? पब्लिक ट्रांसपोर्ट और उबर, ओला, कैब, फिर हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में क्यों इम्पैक्ट आएगा उसमें? एक्सीडेंट कम होंगे, बहुत बढ़िया। इंश्योरेंस, यस, इंश्योरेंस कंपनी, यस सर। लेबर, इलेक्ट्रिक कार्स आएगी तो पॉल्यूशन कम हो जाएगा, वही पेट्रोल का कंजम्पशन कम हो जाएगा, ओके। इंफ्रास्ट्रक्चर, वेयर, इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट? Again, there are two different things. One is electric car, one is driverless car. Electric cars need not, they are still driving on the road. Driverless cars gives you a different advantage. जहाँ पे you are not dependent on somebody to come pick you up and do things. Now you will have to see wherever you are. आप लोग जो भी सोच रहे हो ना, वो बहुत ही एक कार इंडस्ट्री के रिलेटेड ही चीज़ें सोच रहे हो. Because these all things are happening, you will have to evolve as human beings also and start thinking one level further. One industry which is drastically going to change in future because of driverless cars is going to be the tourism industry. होटल्स और वो सब चीज़ सबसे ज़्यादा चलती क्यों है? क्योंकि नाइट स्टे करना पड़ता है, रात को लोग ट्रैवल नहीं कर सकते। लेकिन आज अगर रोड्स और वो सब चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती है तो पीपल विल बी एबल टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, स्टे देयर, रोम अराउंड, क्योंकि गाड़ी में कंफर्ट वो हो ही रहा है आजकल। सोते सोते जाओ, गाड़ी अपने आप ही चलाएगी, आपको उठना ही नहीं है। दूसरी जगह पहुँचे, घूमे फिरे, फिर वापस आ गए गाड़ी में। ट्रेन ट्रैवल क्यों करते हो? कंफर्टेबल है, वरना फ्लाइट भी तो जाती है बहुत सारी जगह। बहुत लोग आज की तारीख में भी ट्रेन ट्रैवल को कंफर्ट में मानते हैं,
कि भाई यहाँ से दिल्ली जाना है, रात को 5 बजे बैठे, सुबह 9 बजे उतर गए, अपना काम करा, रात को वहाँ से बैठ गए, ठीक है. दीज आर दी थिंग्स. थिंक वन स्टेप ऑल्सो फर्दर इन दीज थिंग्स. Transportation, same thing is happening in transportation. Third, education, which we will deep down into future in the presentation ahead. Education overall is evolving in a way, क्योंकि आप लोगों के लिए भी जो आपसे 10 साल पहले लोग पढ़ कर गए हैं ना, वो तो आज आप पढ़ ही नहीं रहे हो, और अगर पढ़ रहे हो तो उसमें चीज़ ये है कि भाई वो इम्प्लीमेंट ही नहीं होने वाली बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ ऑटोमेट हो चुकी है, ठीक है. So that is going to be number one thing. Number two, when you come out of 3 years of your studies, if you are not conceptually right, there are high chances you will be replaced by a technology. यानी how many of you like graphic designing? Anyone? किसी को graphic designing पसंद है? ठीक है. किसी को डिजाइनिंग पसंद है? 2-4 जने हैं. किसी को कंटेंट राइटिंग पसंद, लिखना पसंद है, कविताएं या फिर कुछ भी टाइप का, ठीक है, बहुत सारी. ग्रेट. सो वी हैव पीपल हु आर फ्रॉम द क्रिएटिव बैकग्राउंड. अभी तक जो भी टेक्नोलॉजी आती थी ना, मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी वेर हिटिंग पीपल हु आर इन द नॉन क्रिएटिव फील्ड्स, ठीक है. वॉट यूज टू हैपन, वी यूज टू गेट अ सॉफ्टवेयर विच इज गोइंग टू रिप्लेस पीपल हु आर डूइंग डे जॉब. कोई एक्सेल चला रहा है तो एक ऑटोमेशन आ गया और एक्सेल वाले का काम खराब हो गया, ठीक है. फिर कोई और चीज़ आई कि भाई चलो टैली आ गया, तो जो हिसाब लिखते थे बेचारे लोग बुक में, उनका हिसाब अब ऑनलाइन हो गया, कहीं से भी कुछ भी चीज़ देख सकते थे, तो सॉफ्टवेयर ने वो रिप्लेस कर दिया. जो सेल्स वाले थे वो CRM अपना खुद का चलाते थे, अब ऑनलाइन हो गया, उनको रिपोर्टिंग करना पड़ रहा है, ऑनलाइन से सब कुछ पता चलता है, तो जोहो का CRM आया, उससे बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हुई. टिल नाउ वॉट एवर इवोल्यूशन द टेक्नोलॉजी डिड वॉज इन फ्रंट ऑफ चेंजिंग थिंग्स वेयर नॉन टेक जॉब्स और वेरी नॉन सेक्सी थिंग्स वेर देयर, कि जो मंडेन टास्क होते थे. राइट नाउ द इवोल्यूशन इन लास्ट 2 years हैज़ बीन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन पूरा का पूरा जो भी लोग क्रिएटिव थे ना, उनकी फील्ड में बहुत चेंज आए पिछले 2 साल में. सो यू आर अ कंटेंट राइटर नाउ, हाउ बेटर आर यू गोइंग टू राइट अ कंटेंट देन समबडी हु नोज एवरीथिंग अबाउट गूगल. आपका लड़ाई अब वो होगा. अब वो लड़ाई लड़ रहे हो या वो हथियार के तरीके में यूज़ कर रहे हो, वो आपके ऊपर है. क्योंकि आज copy.ai आपसे तो अच्छी कॉपी लिखने वाला है एनी गिवन डे. उसको क्या इन्फॉर्मेशन फीड करोगे ना, उसके ऊपर है. copy.ai के बारे में कितने लोग जानते हैं? ठीक है, राइटर करके एक टूल है, copy.ai करके टूल है, आप लोग ChatGPT भी यूज़ कर सकते हो, सब चीज़ है. सो कंटेंट राइटर का काम था वो 50% 80% के आसपास तो वो कर ही दे रहा है. और एज अ ह्यूमन आर एफिशिएंसी इज ओनली ऑफ 60-70% ऑफ डूइंग द वर्क. आधे दिन तो अपन मूड में ही नहीं होते काम करने के, ठीक है. सो दैट इज दैट. लास्ट पार्ट इज अबाउट डेली लाइफ. कितने लोग स्मार्ट वॉच पहनते हैं? ठीक है, मैं भी पहनता हूँ, मेरे को गिफ्ट आया हुआ है तो मेरे को पहनना पड़ रहा है, ठीक है. पट्टा भी महंगा है, घड़ी भी महंगी है, तो मैं उसका ROI निकालने के लिए 10 साल तक पहनूंगा, ठीक है. सो मेरे को ये चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं दिखता है, क्योंकि मेरा सोनाटा का घड़ी या टाइटन का घड़ी था ना, वो भी यही समय बताती थी. अब ये मेरे को डराती ज़्यादा है, आज के इतना स्टेप हुआ, दौड़ो. और मैं कहा भाई शरीर तो देख, तेरे को नहीं पता है मैं नहीं दौड़ सकता हूँ. कैलोरी बर्न करना मेरे लिए अच्छी बात नहीं है. उसको ऐसा कि ना भाई तू कैलोरी बर्न कर, દિવસની આટલી कैलोरी तो बर्न करवी પડે, પણ ખાતો જ નથી ભાઈ बर्न, ठीक है. नॉन कॉन्टेक्चुअल इन्फॉर्मेशन कर लो मुट्ठी, दुनिया मुट्ठी में नहीं करना है भाई, इतना दुनिया नहीं चाहिए मेरे को मुट्ठी में, ठीक है. बट ये है इन पर्सनल लाइफ ऑल्सो, यू गेट बॉम्बार्डेड विद अ लॉट ऑफ नोटिफिकेशन एंड दैट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ ए. अभी आज की तारीख में व्हेन वी डू मार्केटिंग, वी डू पर्सनलाइज मार्केटिंग. पहले हम बॉम्बार्ड करते थे, यानी इनिशियली व्हाट यूज्ड टू हैपन, हम बिलबोर्ड लगा रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं कि भाई ट्राइसिकल ऐड कर रहे हैं, कि भाई सबको पता चलेगा, जिसके पास इंफॉर्मेशन होगी या जिसको लगेगा उसके काम की है तो वो देखेगा. काम क्या करते थे, 10 लाख लोगों को दिखाओ तो शायद लाख लोगों को काम लगेगा. दैट यूज टू बी आवर अप्रोच. नाउ व्हाट वी डू, वी पिन पॉइंट कि भाई फेसबुक पे मस्त ऐड चलाने का, फिर आदमी आया अपनी वेबसाइट पे तो उसको सब जगह ऐड दिखाओ. उसने फेसबुक खोला है तो ऐड दिखाओ, उसने अमेजोन खोला तो ऐड दिखाओ, गूगल पे कुछ कर रहा है तो ऐड दिखाओ. हाथ धो के पीछे पड़ जाने का, ये आदमी को खरीदवाने का ये चीज़. दैट इज हाउ इट इज इवॉल्विंग. पीपल आर नाउ टारगेटिंग यू पर्सनली एंड दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन योर डेली लाइफ ऑल्सो. थिंग्स आर गोइंग टू इवॉल्व, ठीक है. नाउ AI एज अ बेन यानी कितने लोगों ने बैटमैन देखा है मूवी? थोड़ा सा पिक्चर विक्चर देखने का रखना, नवरास में उपयोग कर दो कॉलेज में, ठीक है. यानी हिंदी कम देखना, बाहर की पिक्चर ज़्यादा देखना, US UK की, ठीक है. तो तुमको थोड़ा कॉन्टेक्ट समझ आएगा दुनिया कहाँ जा रही है जल्दी से, ठीक है.
इंडियन कॉन्टेक्स्ट में वेब सीरीज बहुत अच्छा बन रहा है, लेकिन वो समय बहुत ज़्यादा खा जाता है। कौन टीवीएफ की कोई पिक्चर्स विक्चर्स किसी ने देखा हुआ है? देखा है। एस्पिरेंट्स देखा है? पंचायत कितने लोगों ने देखा अभी? बहुत बढ़िया, यूज़ कर रहे हो समय का। ठीक। सो ये सो बेन, बेन एक कैरेक्टर था बैटमैन में, ठीक है। उसका नाम वहीं से बना था कि जो खराब तत्व होता है उसको बेन कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। देयर विल बी लॉट ऑफ जॉब डिस्प्लेसमेंट दैट यू आर गोइंग टू सी। हाउ मेनी ऑफ यू लाइक अकाउंट्स? भाई साहब, पहली बार मैंने क्लास में, कॉमर्स वाली क्लास में इतने अकाउंट्स के आशिक देखे, ठीक है। कया मैम છે અકાઉન્ટ્સના? મેમ આ ફોટો પાડલો હો તમે, આમાંથી કોઈ ફેલ થાય ને તો પછી જોઈ લેજો. કેમ, તને તો ગમતું હતું ને? અટેન્ડન્સ ફૂલ હોવી જોઈએ, કારણ કે ગમે છે સબ્જેક્ટ. ઓકે, સો વેન યુ આર સીઈંગ અકાઉન્ટ્સ, a lot of things, I work with my CA a lot and the accountant guy, ठीक है. बहुत सारी चीज़ें अब ऐसा है कि भाई ऑलरेडी बिकॉज ऑफ मशीन लर्निंग आउटपुट बनकर ही आ रहा है, ठीक है. अगर आप जैसे तुम लोग को थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे दूं, आज आप मेरा टैक्स कट रहा है या कुछ हो रहा है तो 26 AS में लिख रहा है कि भाई, दिख ही रहा है कि भाई इतने लोगों का टैक्स कटा हुआ इतना है. अब जब टैली कर रहे हैं, टैली में इनपुट डाल रहे हैं, तो अपने आप ही मशीन दे रहा है कि भाई आपका इतना GST भरने का है, ठीक है. इनिशियली अकाउंटेंट का काम या वो सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा रहता था कि भाई इसका निकालो, इतना कितना करना है, वो इतने स्ट्रेस में रहते थे. नाउ द मशीन्स आर इवॉल्विंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड देन दे आर डूइंग. प्रॉब्लम कहाँ है? पहले एक CA को 4 डेटा एंट्री ऑपरेटर रखने पड़ते थे, ठीक है. नाउ अभी मैं बैंक डालूँ अंदर और मेरे को बैंक के बाद सीधा उसको जो समझ आएगा कि अमेज़ॉन है तो शॉपिंग में जाना चाहिए, वो मशीन को ऑलरेडी पता है. वो अपनी चीज़ें डालकर ही बाहर देगा और मेरे को सिर्फ सस्पेंस अकाउंट बाहर आएगा कि भाई 4 एंट्री समझ नहीं आई तो ये सॉल्व करना. यूजुअली व्हाट यूज टू हैपन इज, आप अपनी बैंक अपने अकाउंटेंट को दोगे, वो एक एक डेटा एंट्री करेगा, उसके लेजर में डालेगा चीज़ें कि भाई हाँ ये इसमें गया, ये शॉपिंग में गया, ये आपका खर्चा आएगा, ये आपने स्टाफ वेलफेयर में डाला हुआ है, या ये आपने पर्सनल एक्सपेंस करा हुआ है, वो सब चीज़ें. नाउ दैट इंडिविजुअल पर्सन हु यूज टू डू अकाउंट फॉर 30 पीपल इन अ मंथ नाउ हैज़ टू डू जस्ट सस्पेंस की एंट्री. वो भी उसको फॉलोअप लेना है कि साहब ये सस्पेंस का 4 एंट्री भेजा हुआ है, आप बताना ये खर्चा कहाँ करा हुआ है. अब ऐसे जो 30 लोग थे जो एक अकाउंटेंट की कंपनी में काम करते थे, उन लोगों के पास अभी कोई काम नहीं है. और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू हैपन अ लॉट. ऑल द मंडेन जॉब्स आर गोइंग टू गेट वेनिस्ड. इन द सेम वे पहले ऐसा होता था, जैसे इन द इंडस्ट्री दैट आई वर्क ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, वी यूज टू हैव अ लॉट ऑफ पीपल. एक जना है जो सुबह से शाम सिर्फ कॉपी ही लिख रहा है. दे आर डूइंग जस्ट कंटेंट राइटिंग. एक ब्लॉग लिखने में 2 दिन 3 दिन 4 दिन हो रहे हैं. अभी दिन के 2 ब्लॉग निकल रहे हैं. क्यों? आधा रिसर्च का काम, वो सब चीज़ें तो AI ही करके दे रहा है. तुमको तो सिर्फ मठार के चीज़ें ढंग से करनी है. दैट इज हाउ द थिंग्स आर चेंजिंग. इन योर 3 years ऑफ कॉलेज थिंग्स आर गोइंग टू चेंज एट अ मच मोर क्विकर स्पीड. You guys will have to work on yourself a lot more than your seniors had to do for that job which you will get at the end of the 3 years. So थोड़ा यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो गया. पहले क्या था कि भाई आदमी है तो काम करवाने के लिए ये कुछ ना कुछ तो काम कर ही लेगा. BCom BBA કર્યું છે ને તો ચલો આ વાળું કામ તો કરી જ લેશે. હવે એ વાળું કામ તો મશીન જ કરી રહી છે. So you will have to evolve as individuals and that is what the thing is. ठीक है. Second is biases and ethics. मशीन के पास वो नहीं होता है. जैसे आज कोई 4 जने नहीं आए हैं, ठीक है, तो आज ओरिएंटेशन है, अटेंडेंस होगी, तो 4 जने नहीं आए. अब किसी ने कहा कि भाई मैं बहुत दूर से आता हूँ, मेरे को जल्दी जाना पड़ता है, तो मैं चला गया. फॉर मशीन दैट इंफॉर्मेशन इज़ नॉट देयर. उसके लिए ऐसा है कि मार्क एब्सेंट और 4 मार्क कट जाएंगे, जो आपके पास अटेंडेंस में होगा फ्यूचर में, ठीक है. D10 हो जाओगे, कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि मशीन है. 70% से ज़्यादा चाहिए, अटेंडेंस तो चाहिए. 69 पे भी अलाउड नहीं है. ह्यूमन जहाँ आता है ना, तो ह्यूमन ऐसा है 69 है, ચાલે 1% માટે ક્યાં આવું કરું, ठीक है, चलो છોકરાનું આખું 6 મહિના બગડે, આપણે ક્યાં એવું કરીએ. मशीन को कोई फर्क नहीं पड़ता है. मशीन का कोई एथिक्स नहीं, कोई ईमान धर्म नहीं. मशीन का ये है कि इफ इट इज़ राइट इट इज़ राइट, इट इज़ रॉन्ग इट इज़ रॉन्ग, क्योंकि मशीन को समझ आता है सिर्फ 0 और 1 बाइनरी, ठीक है. एंड दैट इज हाउ मशीन. सो दैट इज वेयर अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू कम. कितने लोग एक्टिवा चलाते हैं? ठीक है. और लाइसेंस के साथ कितने लोग चलाते हैं? ठीक है. चिट्ठी आती है घर पे? अभी आना थोड़ा बंद हो गया है. पहले बीच में एकदम ऐसा मस्त हो गया था कि भाई कुछ भी करो घर पे चिट्ठी आ जाता था. मशीन है ना. अपन પેલા पुलिस वाला है 20 रुपये भी दे के कभी कभी निकल गए हो तुम लोग,
कभी 100 रुपये दे के भी निकल गए हो, अब चिट्ठी घर पे आ रहा है तो 500 भरना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन ही नहीं है। ह्यूमन कॉन्टेक्स्ट चला गया। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्राइवेसी इज अ मिथ। ठीक है, आप लोग कहीं गए हो, आपने कहीं डेटा दिया तो गया, अब सबके पास इंफॉर्मेशन है। आप आज यहाँ पे हो, GLS में पढ़ रहे हो, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल गेट बॉम्बार्डमेंट ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल। GMAT की तैयारी कर लो, GRE की तैयारी कर लो, बाहर का ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। आप एज ए इंडिविजुअल अब वो आइडेंटिटी से कहीं भी आप जुड़ोगे तो वो प्राइवेसी का इशू हर जगह आएगा। अब वो नहीं है कि भाई गायब रह सकते हो, फेसबुक अकाउंट नहीं है, ट्विटर अकाउंट नहीं है, वो सब चीज़ है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि तुम गायब रह पाओ। You will get bombarded with a lot of things, and then as AI is evolving, it will understand that this person likes these kind of things. ठीक है, आप जो YouTube कितने लोग यूज़ करते हैं? बहुत बढ़िया। सो YouTube का एल्गोरिदम वर्क्स इन अ वे ऑफ रेबिट होल। व्हाट डू आई मीन बाय रेबिट होल? रेबिट होल क्या होता है कि भाई घुसो ना तो घुसता जाओ अंदर, क्योंकि रेबिट हमेशा अपना होल वैसे ही बनाता है कि भाई और अंदर और अंदर और अंदर, एंड दैट इज हाउ यूट्यूब इवॉल्व्स और वर्क्स। आप अगर ऐसा लिखोगे कि भाई ये पार्टी ऐसी है, तो उसके बारे में 10 वीडियो आएंगे, और फिर आप एक वीडियो देखोगे, 2 देखोगे, 3 देखोगे, यूट्यूब आपको इतने सारे रिकमेंडेशन करेगा ना, जब तक आपको समझ नहीं आ जाएगा कि हाँ ये पार्टी तो खराब ही है। फिर आप यूट्यूब पे ये लिखोगे ये पार्टी अच्छी है, तो उसके 4 वीडियो आएंगे, उसके तुमको 10 वीडियो और दिखाएगा कि हाँ ये, तुमको ऐसा विश्वास ही हो जाएगा कि हाँ ये पार्टी अच्छी ही है। दैट इज हाउ द थिंग्स आर बिल्डिंग अप, एंड दैट इज हाउ थिंग्स आर हैपनिंग. If you see the privacy concerns, initially when I worked with the government earlier, and I was there in the Department of Real-Time Governance for 2.5 years. Cambridge Analytica करके एक चीज़ आई थी, लिख के रखना, आप लोग जाके स्टडी करना. पूरा का पूरा इलेक्शन ही फेसबुक ने उड़ा दिया था. यानी आई थिंक वेस्ट इंडीज़ के आसपास कोई जगह थी जहाँ का इलेक्शन था, ठीक है, डिक्टेटरशिप वाला ही जगह था, उसके अंदर इलेक्शन करवाए उन्होंने, डेमोक्रेसी से ये वो, लोगों को कुछ और करना था, लेकिन फेसबुक ने इतना बॉम्बार्डमेंट करा है कंटेंट का, एड्स का, और वो कॉन्टेक्चुअल इन्फॉर्मेशन जितनी शेयर करी थी कि ये आदमी को अभी ये पिन पॉइंट है, आप ये चीज़ की ऐड करो, ये करो, उसके कारण ब्रेन वॉश आप बहुत ईजीली कर सकते हो, ठीक है. और वो चीज़ लास्ट इज ऑटोनोमस वेपन्स. अगर मशीन के हाथ में ही सब कुछ है तो टेक्निकली मशीन कैन रन अदर मशीन्स ऑल्सो, एंड वेपन्स आर रन बाय मशीन्स. सो जो आपको फ्यूचर में दिखाते हैं ना कि हाँ ये वाला होगा कि भाई कोड जो न्यूक्लियर कोड्स है उसका हो सकता है, ये हो सकता है, उतना ज़्यादा तो नहीं होगा, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट इतना नहीं रखेगी कि मशीन के हाथ में ही सब कुछ रहेगा, लेकिन देयर कैन बी अ लॉट ऑफ थिंग्स विच कैन बी रन बाय मशीन्स, ठीक है. इंटरनल वॉर्स वो सब चीज़ें तो मशीनरी से हो सकती है आराम से, और वो एक फ्यूचर का थ्रेट है, ठीक है. नाउ द फ्यूचर ऑफ ए द दिस हैज़ बोथ द थिंग्स कि भाई आप लोगों के लिए क्या क्या चीज़ है, कॉन्टेक्स्ट कहाँ कहाँ जा रहा है और क्या चीज़ है. मैं थोड़ा सा सर माइक हैंडल वो कंटाड़ी गए એટલે Okay, great. So if you see, the advancements are majorly going to happen in the chat capabilities. If you see the first part, where whatever information that you are going to have in your hand is going to increase day by day. The kind of information is also going to increase, or the quality of information is also going to increase. ठीक है. आप लोग कितने लोग रोम कॉम मूवी देखते हैं, रोमांटिक कॉमेडी, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा देखते ही होंगे. जो लोग नहीं देख रहे हैं 1-2 साल में देखने लगेंगे, ठीक है. कॉलेज लाइफ है, सबको प्यार नहीं मिलता है, दुखी होते हो तो तुम किसी और का प्यार देखते हो कि चलो आने तो खुशी मड़ी, ठीक है. फिर थोड़े दिन हो गए तो अर्जुन रेड्डी टाइप की मूवी देखने लगोगे, कबीर सिंह, है वाणा वाँ वाँ वाँ, ठीक है. सो वो चीज़ वैसा ही रहेगा. हाँ. सो हाउ इफ़ यू सी द ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रोम कॉम मूवीज ऑल्सो, राइट नाउ द मूवीज दैट यू माइट बी ऑल्सो लाइकिंग और सीइंग आर फ्रॉम साउथ इंडिया, ठीक है. बहुत सारे लोग दलजीत समन या वैसा कुछ नाम है, केरला वाला एक्टर, उसका नाम क्या है, मोमबत्ती का लड़का, किसी को पता है? दलजीत या वैसा कुछ. दलजीत तो नॉर्थ इंडियन है अपना, पंजाबी, लेकिन वो है. कितने लोग पंजाबी गाने सुनते हैं? हाँ, कितने लोगों को पंजाबी आती है? काहे सुन रहे हो बे? हैं, क्या मज़ा आ रहा है? खलासी, आदित्य भाई का गीत गाना,
भाई वर्ल्ड वाइड चल रहा है, गोतिलो गोतिलो कर रहे हैं लोग। ये सब चीज़ क्यों हो रही है? बिकॉज इंफॉर्मेशन का जो ट्रांसमिशन है, इट हैज़ इंक्रीज द लॉट। प्लस इट डज नॉट डिपेंड कि भाई आपको लैंग्वेज समझ आ रहा है या नहीं, कॉन्टेक्स्ट कई बार समझ आता है। अभी वो गुलाबी साड़ी वाला गाना है, देखा है वीडियो? रील में भी बहुत चला है, ठीक है, लोगों ने गुलाबी साड़ी करा हुआ है। भाई मेरे इंटर्न को पूछा, मैं कहा इंटर्न नहीं टीममेट ही है, यानी ही इज़ अ फुल टाइम एम्प्लॉय। मैं कहा क्या अच्छा लगा? नहीं સાહિલ ભાઈ એણે છે ને વિડીયો બહુ સારો બનાવ્યો છે, પેલો પેલીને સપોર્ટ કરે છે। મેં કીધું ભાઈ બહેન તું આમ ક્યાંથી ક્યાં જઈ રહ્યો છે? અગેન યુ ડોન્ટ નો ધ લેંગ્વેજ બટ યુ કેન ફીલ દેટ થિંગ. This is what the human context is. Languages are not important, the feelings are. ठीक है? सो तुम देखो ना 2 states वाली कहानियाँ तुम में भी देखेगी कि भाई पहली क्या आना प्रेम में पड़ी भाई है। हमारे टाइम में होता था कि भाई शहर नो रोबो गाम नो डोबो, ठीक है, ऐसा करके हम लोग चिढ़ाते थे कपल्स को। ओके, बट दैट इज गोइंग टू हैपन, दैट ह्यूमन साइड is only going to remain in context of your love language only nowadays. Other than that, in all the information system, it is going to become more and more black and white. Entertainment section is going to evolve, but in rest all the sections you will see कि भाई क्योंकि इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के पास जितना ज़्यादा जाएगा वो उतना ही ज़्यादा डेवलप होगा और उतना ही ज़्यादा अच्छी चीज़ें करेगा। इसके कारण आप लोगों के जो इमोशन है वही आपके पास है, रेस्ट ऑल द थिंग्स आर गोइंग टू इवॉल्व। ठीक है, सो दैट इज नंबर 1। एथिक्स पे जितना ज़्यादा काम करोगे एज इंडिविजुअल्स उतना ही ज़्यादा ग्रो करोगे। पहले के टाइम पे ऐसा था किसी को समझ नहीं आता था कि क्या चीज़ है, कि भाई आने मारा जोड़े खोटू करना क्यों ने तो ये खबर नहीं પડે। જ્યારથી લાસ્ટ સીન આવ્યું છે ને ખોટું કર્યું છે ને એનું પ્રૂફ છે બધા જોડે। જ્યારથી બ્લુ ટીક થઈ છે ને તો તમે જોઈને ભાગી ગયા ને એનું પ્રૂફ છે, બરાબર। તો જેમ જેમ સોસાયટી ઇવોલ્વ થશે ને એમ એમ આ બધી વસ્તુઓ વધતી જશે અને એનો પ્રોબ્લેમ વધશે, બરાબર। નાઉ ધી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ વાઇઝ ઇફ यू सी डिजास्टर मैनेजमेंट एंड दोज काइंड ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू इंक्रीज अ लॉट। राजकोट वाला इंसिडेंट हुआ अपने पास, लेकिन उससे लोगों को ये चीज़ समझ में आती है कि भाई आज भी अगर ये हो रहा है तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं हुआ है। तो उन्होंने क्या करा, सब जगह सब गेम जोन बंद कर दिए और बहुत सारी चीज़ें बंद कर दी। अब जब खुलेगी तो शायद ढंग से खुलेगी, ठीक है, सब परमिशंस के साथ और वैसा। इन द सेम वे कितने लोगों को ब्लॉकचेन समझ आता है या कभी सुना हुआ है ब्लॉकचेन? क्रिप्टो वाला कोई है? रातों रात अमीर बनने वाले लोग, ठीक नहीं ना? हाँ हाँ। सो ब्लॉकचेन एंड दोज काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर वेयर यू हैव योर लैंड रिकॉर्ड्स विच आर स्टोर्ड। वो सब अच्छी अच्छी चीज़ें भी उसमें होती है, बैंक डिटेल स्टोर होती है और बहुत सारी चीज़ें। बीच में ऐसी फालतू चीज़ें भी आती है जैसे NFT करके आया था कि भाई एक पेंटिंग है, पेंटिंग को स्टोर करके रखेंगे और वो होगा। वो अपने आप में बात सही है लेकिन वो कॉन्टेक्स्ट में सेट नहीं होता। अगेन अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू कम। आर दे गोइंग टू इम्पैक्ट योर लर्निंग? आर दे गोइंग टू इम्पैक्ट योर थिंग और नॉट? दैट इज वॉट गोइंग टू वी आर गोइंग टू सी नेक्स्ट, ठीक है। सो ए इज अ फ्रेंड ऑफ यू। द इम्पैक्ट on your life in the next 3 years is what we are quickly going to see. क्या लिखा हुआ है? मोस्टली तुम किसी भी मार्केटर को पूछोगे ना कि व्हाट डू यू थिंक इसमें बजट क्या होना चाहिए, इट डिपेंड्स आप लोग को क्या आउटपुट चाहिए। मार्केटिंग में ये 2 शब्द अगर किसी को भी आगे जीवन में मार्केटिंग में जाना है, ये 2 शब्द याद रखना, इट डिपेंड्स। कहीं भी फिट हो जाता है, ठीक है। सामने वाला कहे कि ये फेसबुक एड्स क्यों नहीं चल रही, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ एड दैट यू हैव रन। आपका क्रिएटिव क्या है, आपका ये क्या है, आपने शायद बजट ये रखा होगा, ऑडियंस ये सिलेक्ट करी होगी। बहुत वेग चीज़ है मार्केटिंग, कुछ चलता है तो कुछ चल जाता है, कुछ नहीं चलता तो कुछ भी नहीं चलता है, वैसा, ठीक है। सो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग ऑल्सो इट डिपेंड्स व्हाट यू वॉन्ट टू डू, ठीक है। वाई एम आई सेइंग सो? हाउ विल यू यूज, एक मिनट नीचे से कट रहा है, ओके yeah. So majorly how will you use AI wisely? The number one thing that is there, it does not replace the effort. पहले क्या होता था, आप लोग प्रेजेंटेशन बनाना जानता है सब लोग? सबको प्रेजेंटेशन बनाना समझ तो आता है, प्रेजेंटेशन बनाना। Initially when we were, I was in college in 2010 to 2014. By 2013 we had Canva as a tool. Before that we used to only use Microsoft Office, ठीक है। उसके अंदर 4 टेम्पलेट आती थी, वो टेम्पलेट यूज़ करना, और किसी ने अगर कोई एनिमेशन डाल दिया तो उसको कहते थे भाई साहब क्या मस्त आदमी, मस्त चीज़ बनाए, भाई एनिमेट होके इसकी स्लाइड्स आ रही है, तो उसको भाई OG कहा जाता था। कि हमारे टाइम में OG शब्द नहीं था लेकिन आप लोग के कॉन्टेक्स्ट में OG, ठीक है। सो दैट यूज्ड टू बी देयर।
Now there are plethora of tools for you where you can create presentation. व्हाट्सएप पे बॉट है आपके पास जो AI वाला, उसको पूछोगे कि इफ़ आई वांट टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन फॉर XYZ टॉपिक, गिव मी स्लाइड्स, ठीक है, एंड गिव मी पॉइंटर्स ऑफ द स्लाइड्स, वो आपको दे देगा. आज पूरे टाइम में ये सबसे बेस्ट टाइम है जब आप कुछ एग्जीक्यूट कर सकते हो, क्योंकि आपके पास हर चीज़ हाथ पे है. आपके पास टूल्स बहुत सारे हैं, आपके पास इंफॉर्मेशन बहुत सारी है. द ओनली पॉइंट इज यू विल हैव टू पुट इन एफर्ट्स टू डू दोज थिंग्स. टूल्स टेक्नोलॉजी का मतलब ये नहीं है कि भाई आपको एफर्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे. एफर्ट पहले भी डालने पड़ते थे, एफर्ट आज भी डालने पड़ेंगे. अब आपसे एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी, एंड दैट इज व्हाट इज गोइंग टू चेंज. इनिशियली क्या होता था कि भाई चलो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा, अगर आप 20 साल पहले की बात करोगे ना, तो लाइब्रेरी में जितना चीज़ मिलेगा ना, उसी से लोग अपने रिसर्च पेपर और सब कुछ लिखते थे. आज तुम लोग से एक्सपेक्टेशन नहीं है कि लाइब्रेरी जाके बुक्स खंखेरो. आज ये है कि भाई हर एक इन्फॉर्मेशन हाथ में तो है, तुम 15 रिसर्च पेपर AI में डालो, वो तुमको कॉन्टेक्स्ट भी दे देगा कि पूरा 50 पन्नों का रिसर्च पेपर पढ़ने का जरूरत ही नहीं है. तुम डालो चैटबॉट में और तुमको टूल दे, वो बता देगा कि भाई ये कॉन्टेक्स्ट क्या है. Now the expectation will increase from you guys, and that is what is going to change in the next 3 years. Okay, so it is again a supplement. It is not कि भाई यही सब चीज़ करके देगा, ठीक है. So that is what I was trying to do. Second and the most important thing is क्या सही है और क्या गलत वो आप लोग को पता होना चाहिए. The main problem which will come with AI in the current generation also is it is not going to be always right. क्योंकि the information of AI is also coming from some database, and it is not always necessary that database is also right, or wherever they are getting information from is right. If you see about a Google search, you will see a lot of websites which are getting ranked there in Google. Are all the websites giving right information? वरना तो फार्मास्यूटिकल वाले तो भाई मर जाए. क्यों? 10 पैसे का पैरासीटामोल होता है, वो लोग वो चीज़ इतने ज़्यादा भाव पे बेच रहे हैं. दैट इज़ द डिफरेंस कि भाई क्या चीज़ है, और आपको ये समझना है कि भाई AI से आंसर आ रहा है तो वो सही है या नहीं है, ठीक है. सो दैट इज़ अ मेजर थिंग. एंड लास्ट पार्ट इज इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी अ कोलैबोरेशन बिटवीन यू एंड द टूल्स. ओके, सो लेट अस सी नेक्स्ट. द फ्यूचर ऑफ द होल कॉन्टेक्स्ट और द होल थिंग इज ऑलवेज गोइंग टू बी कोलैबोरेशन. पहले क्या होता था, आप MS पेंट यूज़ करते थे, कुछ लोग आज भी कर रहे हैं, ठीक है. उसके बाद आप कैनवा पे आए हो. कैनवा पे भी मैजिक वॉन्ड करके एक टूल होता है अभी, जिसके अंदर आपकी चीज़ें हो रही है. टूल्स वही रहेंगे, आप भी ह्यूमन कॉन्टेक्स्ट में वही रहने वाले हो. द ओनली पॉइंट इज गोइंग टू बी टूल इज गोइंग टू गेट बेटर एंड बेटर विद टाइम. यू एज ए इंडिविजुअल विल हैव टू बिकम अ बेटर मास्टर ऑफ द टूल, और बेटर पर्सन टू अंडरस्टैंड कि भाई ये टूल ये टाइम पे यूज़ करना है, ये टूल ये टाइम पे यूज़ करना है. एंड दैट इज हाउ द नेक्स्ट 3 years आर गोइंग टू बी फॉर यू, बिकॉज एवरी नाउ एंड देन यू विल गेट अ plethora of tools which are going to make your life very 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 easy in next 3 years. जैसे हम लोग जब स्टार्टअप चालू कर रहे थे तो हम लोग को एक डेवलपर चाहिए था. आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड ऑफ डेवलपमेंट, तो आई यूज टू कोड द वेबसाइट. यू डोंट नीड अ डेवलपर राइट नाउ. बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट यू कैन डेवलप योर वेबसाइट इन Wix वेरी इजीली. 1 घंटे में आपके पास आपका स्टोर, यानी अगर आपको शॉपिंग वेबसाइट बनानी है, आपका स्टोर रेडी 1 घंटे में. आपको इमेजेस चाहिए, आप डेला में डालो या कोई भी AI का टूल यूज़ करो, आपके पास इमेजेस रेडी है. कैनवा पे भी आप इमेज जनरेट कर सकते हो. अब आइडियाज़ को एग्जीक्यूशन में डालने का टाइम है, और उसके लिए आपके पास अभी सब टेक्नोलॉजी है. द ओनली थिंग विच विल हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ 3 years इज इफ यू आर नॉट कंटिन्यूसली यूजिंग दीज ऑल थिंग्स, यू विल टेक्निकली मेक योर सेल्फ अनएम्प्लॉयबल. कहीं ना कहीं लगी जाएगा नौकरी, ऐसा नहीं नौकरी नहीं लगे. नौकरी लगने के बाद भी अगर आप सेल्फ लर्निंग वाले पाथ में नहीं रहोगे, ये जनरेशन में सर्वाइव करना डिफिकल्ट है. पहले कैसा होता था, कुछ नहीं तो TCS ही उठा के ले जाएगा. हमारे टाइम पे ऐसा होता था कि भाई अगर आप इंजीनियर हो ना, कोई लोकल कॉलेज में भी पढ़े हो ना, कुछ नहीं होगा तो TCS तो ले ही जाएगा. पिछले 1.5 साल से TCS ने हायरिंग फ्रीज कर रखा है. इंडिया की टेक इंडस्ट्री में तो वो इम्पैक्ट दिख ही रहा है कि भाई TCS कोई ऐसा है कि भाई હવે બાળકો નથી લેવાના. और भी इंडस्ट्रीज में ये चीज़ होने ही वाली है. इफ़ यू इवॉल्व योर सेल्फ यू विल बी एबल टू डू इट बेटर. इफ़ यू डोंट, वी डोंट नो अबाउट द लाइफ हाउ इट इज़ गोइंग टू हैपन. ओके, चलो थोड़ा डरा दिया, लेकिन दैट इज़ हाउ
the things will be. So please work on yourself. You have good 3 years. लिंक्डइन समझ आता है तो लिंक्डइन चलाओ. कुछ भी एक चीज़ समझ आ रही है, क्योंकि आप लोग को सबको रील वील सब समझ आता है. आज कुछ भी बाकी नहीं है, सब लोग कुछ ना कुछ रील बनाते हैं, कुछ करते हैं. Please start working on yourself. It is high time, because those people who will be working on themselves are only going to survive. Rest all them, it might become very, very difficult for you guys. So, thank you for the time. That was AI explained in a nutshell, and quite interestingly too. As we come to the close of this wonderful event, it is my privilege to propose the vote of thanks. First and foremost, I would like to extend our deepest gratitude to our esteemed speaker, Mr. Sahil Shah. Your inspiring and visionary words have truly enlightened us and offered transformative perspective on AI, boon or bane. We are grateful for your time and for sharing your wisdom with us. I would like to acknowledge and appreciate the efforts of our organizing team that includes faculty members and our backbone, our student volunteers. Your hard work, dedication, and meticulous planning have ensured the smooth execution of Samvad. Our technical team also deserves a special mention for managing the logistics and ensuring that everything runs smoothly. To our wonderful audience, thank you for enthusiastic participation and engagement. Your presence and interaction have been the heart of Samvad, and we hope you take away valuable insights and connections from today's event. As we conclude, let's carry forward the spirit of dialogue and understanding that we have experienced here today. Thank you all once again for being a part of Samvad.